हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़। देयर आर मैनी एनवायरमेंटल इश्यूज़ विच आर थ्रेटनिंग टू द एटमॉस्फेयर लाइक फॉरेस्ट फायर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, एक्स्ट्रा. These issues, if not tackled, they can disturb whole of the biosphere. हमारे माहौल, हमारा वातावरण में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैन मेड हैं और कुछ नेचुरल हैं, और वो सब के सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ तैयार कर रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, जैसे पॉल्यूशन है, जैसे सॉइल इरोजन है, एक्स्ट्रा. देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज़ which are very becoming serious day by day on the name of modernization and development. Environmental issues created by human being are always undesirable, and one of the issue is pollution. Pollution of any type, whether that is air pollution, water pollution, or noise pollution, it is always undesirable change which is brought about by various substances like chemical, particulate matters, biological materials, like biological materials which are added to air, water, or soil. Now mainly there are three types of pollution. Pollution means any unwanted change in our medium. Any unwanted change, any unpleasant change in our environment is known as pollutants, and those substances which cause the pollution are known as pollutants. Now let us start air pollution. It is well known to you, all of you. You might have gone through this air pollution in lower classes. Air is a complex, dynamic, natural entity which is essential for supporting life on the earth. It is known to all of you that without air we can't survive, and air is very dynamic, natural entity. It's a gift of the nature, and it is very much essential for the survival of living creature on the earth. Air pollutants, the substances which cause the pollution, and other substances. Some of the common pollutants of air are nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide and carbon monoxide, volatile organic compounds, and particulate matter. Now the question arises, how to control the air pollution. Air pollution causes severe respiratory disorders in human and other animals, and also affects plants. It can be controlled by the following ways. एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी मेजर जो है प्रॉब्लम है, जो सीधा सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, नोज़ है, ब्रोंकस है, लंग्स हैं, इन पर जो है इफ़ेक्ट डालता है। यहाँ तक कि प्लांट्स पर भी इफ़ेक्ट डालता है, यहाँ तक कि हमारे जितने भी वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स हैं उन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ता है. सो in order to make the environment neat and clean and free from any type of defects or free from any type of disease, we have to control the air pollution. We must design certain methods which would help us in controlling the air pollution. So first method is fitting smoke stacks and smelters with filters to separate pollutants from the harmless gases.
कुछ ऐसे डिवाइसेस आजकल मार्केट में हैं और साइंटिस्ट ने तैयार भी कर दिए हैं जो हमारे फैक्ट्रीज़ में या कहीं से भी एयर में पॉल्यूशन आ जाता है। आपने देखा कि गर्मी के दिनों में सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, गाड़ियाँ चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कई बार बर्निंग हो जाती है या खड़ी फसलों को जो है स्टैंडिंग क्रॉप्स को जब उनकी कटिंग की जाती है तो पंजाब, हरियाणा, बिहार जो है ऐसे ऐसे कुछ स्टेट्स में ज़मींदार लोग जो हैं वो अपनी स्टैंडिंग क्रॉप्स में आग लगा देते हैं, तो उसकी वजह से लार्ज स्केल पॉल्यूशन होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आजकल कुछ ऐसे फ़िल्टर्स एंड स्मेल्टर्स हैं जो एयर में रखे जाते हैं। आपने दिल्ली में भी सुना होगा, अगर आप न्यूज़ में जाते हैं तो वहाँ पर दिल्ली में जब पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जगह जगह पे ऐसे एयर क्लीनर लगा देते हैं जो एयर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनमें से जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं। Particulate matter means finely divided particles of solid, liquid or gases. Particulate matter का मतलब सिर्फ सॉलिड्स नहीं होता, जैसे हम डस्ट को एक पार्टिकुलेट मैटर कह सकते हैं, सिमिलरली गैसेस के पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल जो तकरीबन इनविजिबल होते हैं टू द नेक्ड आई। They can only be removed with the help of electrostatic precipitators. ऐसे precipitators जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। It contains electrodes, wires containing at several thousand volts, which produces electron. These electrons cling on to dust particles and give them a net negative charge and are attracted by collecting plates, which are grounded. The velocity of air passing through the plate should be low enough to allow the dust to fall. अब किया क्या जाता है कि जब इस डस्ट को, हवा को इन प्रेसिपिटेटर्स के बीच में से गुजारा जाता है तो जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो पहले न्यूट्रल होते हैं। अब उनको इलेक्ट्रिसिटी जब गुजरती है तो उनका चार्ज नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव चार्ज वालों को नीचे जो है इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव चार्ज की प्लेटें लगाई होती हैं, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड्स हैं वो इनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, उनको लो चार्ज पे रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल जो है हवा से निकल के अर्थ पे नीचे आ जाते हैं। सिमिलरली एक स्क्रबर होता है। स्क्रबर कैन बी यूज टू रिमूव गैसेस। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस इज यूज टू क्लीन द gaseous pollutants. So that is scrubber, wherein the exhaust gases passes through a spray of water or lime. जहाँ पर वो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको एक स्प्रे ऑफ वाटर या लाइम में से गुजारा जाता है, जिससे पॉल्यूटेंट्स वहीं रह जाते हैं और हवा जो है क्लीन होकर बाहर चली जाती है। Vehicular pollution can be reduced by using less polluting fuels. अब गाड़ियों का धुआं मौत का कुआं जगह जगह पे लिखा होता है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी इस पर हुई। तो गाड़ियों का धुआं कम किस तरह से हम करें? अब गाड़ियाँ तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, बहुत सी जो है इस वक्त आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा टन्स एंड टन्स ऑफ जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह जो है ये ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं और ये वाटर के साथ मिलकर अपने अपने रेस्पेक्टिव एसिड्स बनाते हैं और वही एसिड जब बारिश के साथ नीचे गिरते हैं तो वो एसिड रेन बन जाती है और एसिड रेन से ना सिर्फ एनिमल्स पे बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी थ्रेट हो जाती है। जैसे आगरा के जो ताजमहल है, उस ताजमहल के स्टोन भी जो है एयर पॉल्यूशन से सॉफ्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि हम ऐसे फ्यूल ही यूज़ ना करें जिनसे पॉल्यूशन होता है। जैसे अवॉइड करेंगे पेट्रोल, अवॉइड करेंगे डीज़ल, अवॉइड करेंगे केरोसिन ऑयल, अवॉइड करेंगे कोल,
आजकल तो कोल कम यूज़ होता है, पहले ट्रेन्स में यूज़ होता था। तो इसको रिप्लेस करेंगे CNG गैसेस से, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो CNG जो है वो एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं के बराबर करता है। Vehicles can be fitted with catalytic converter that have metals such as platinum, palladium and rhodium as catalyst. जो व्हीकल्स हैं उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर भी लगाया जा सकता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इनमें कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे प्लेटिनम है, पैलेडियम है, रोडियम है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और ये कैटलिस्ट जो है इनमें कन्वर्शन में हेल्प करते हैं। जैसे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में। और अनप्लेटेड पेट्रोल मस्ट बी यूज्ड विद कैटालिटिक converter as presence of lead in the petrol inactivates the catalyst, क्योंकि यहाँ पर लेड की प्रेजेंस से वो कैटलिस्ट जो है इनएक्टिव हो जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एनवायरनमेंट इशू, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन, हाउ इट इज़ कंट्रोल एंड what are various devices by which we can control it. Thank you very much.